All right, welcome to the answers time at 9 p.m. day 17 it is. Welcome to Anjan Kalash IAS और हम शुरू करते हैं without wasting any time our discussion for today. Geography का जो question था that the Kumaon Himalayas lie between which two rivers, ठीक है. The question has been taken from Geography NCERT Standard 9th. तो आप सोचो आपको पता तो बिल्कुल होना चाहिए था. There is no reason that you are supposed to do it wrong. And now you know that the options are not going to help you, है ना, based on the current pattern. If they get back to the earlier pattern of showing you the options and helping you with elimination, good enough. लेकिन अगर वो नहीं करेंगे तब हम क्या करेंगे? So it's always better to go for the safer means and the safer method, which is we should know the facts, जो at least important facts हैं. Now in one day we cannot cram all the facts, and therefore this 30-day exercise will help you build that tendency, or let's say build that attitude gradually. Anyways, the answer here is सतलज एंड काली रिवर. ठीक है, अब देखते हैं एक बार. ये देखो 9th की NCERT का सेगमेंट है. आप इसको अच्छे से मैप में बना लेना whenever you prepare the physical features वाला and Himalayas का segment. But here you see that the part of Himalayas lying between Indus and Satluj is Punjab Himalaya. Then between Satluj and Kali is Kumaon Himalaya, which was our question. But you have got it for 3 other as well. So you should know it for Punjab Himalaya also, Nepal Himalaya also, and Assam Himalaya also. Kali and Teesta River, Nepal Himalaya, and Teesta and Dihang, Assam Himalaya. They can ask you to do the match as well, है ना, मैच द कॉलम में पूछ सकते हैं. सो पंजाब हो गया, कुमाऊं हो गया, नेपाल हो गया, असम हो गया, और कौन से रिवर्स के बीच में है. काइंड ऑफ जो हमने पंच प्रयाग वाला एक एक्सरसाइज देखा था ज्योग्राफी में कि भागीरथी अलकनंदा मिल रहा है तो कहाँ पर हो रहा है, एटसेट्रा एटसेट्रा, कॉन्फ्लुएंस जो है. सो दिस इज समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट बिकॉज यू विल गेट कन्फ्यूज बिकॉज देर आर डिफरेंट पार्ट्स ऑफ हिमालयस दैट यू हैव टू प्रिपेयर एंड देन डिफरेंट रिवर्स यू विल हैव टू रिमेंबर. ठीक है, चलो. Another question of geography. Okay, so with this what you have to prepare, you have understood it now, the whole physical feature wala chapter. So you get it, one in standard 9th, another in standard 11th Indian geography. दोनों मिला के पढ़ लेना, पूरा का पूरा physical feature वहीं पे खत्म हो जाएगा, and a major chunk of your syllabus would also be done. Another important thing in Indian geography is your drainage. वो हम already past में बहुत जगह पे कर चुके हैं. Another important is your climate, पर उस पे बाद में आएंगे. ठीक है, अभी के लिए हमने ड्रेनेज और फिजिकल फीचर्स को यहाँ से ख़त्म किया. देन एट डिफरेंट प्लेसेस वी हैव टॉक्ड अबाउट रिसोर्सेज ऑल्सो, इंडस्ट्रीज ऑल्सो, वेजिटेशन ऑल्सो, ये सब भी हमने देखा है. तो आप डिफरेंट प्लेसेस पे उनको भी कंसिडर कर सकते हो. सो यू वुड अंडरस्टैंड दैट इंडियन जोग्राफी का वन मेजर सेगमेंट यू आर ऑलरेडी कवरिंग. मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच स्टेट्स ऑफ इंडिया हैव लॉन्गेस्ट एंड शॉर्टेस्ट कोस्ट लाइन. I already gave you that hint, although I shouldn't have actually, कि UT नहीं पूछा गया because many people might have made the mistake in that also. Considering कि हो सकता है question लिखने वाले से ही गलती हो गई होगी and they would have just did it for UT, because when you choose UT the answer would definitely become different answer. चलो, since we talked about the state, so longest coastline is for Gujarat, and this is the rough data, approximate data of the coastline length, and shortest is for Goa. But what you also should know about the total coastline. So ये पढ़ लेना कि हमारा जो total coastline है, this is again taken from NCERT geography. So total coastline length including the mainland and Andaman Nicobar and Lakshadweep Island. तो अगर सिर्फ mainland पूछा जाएगा तो of course this number would be little less. Exactly you should remember these two data. This is for the land boundary, this is for the coastal length. For the reason that many government exams, state services हो या दूसरे exams हो, they ask you precisely about the numbers and they'll confuse you, 7515, 7514. So, don't just go with the rough approximation. In this, at least know the exact one. So, if the question would have been about state or UT, कुछ भी बताने के लिए, then the answer would have been Andaman and Nicobar, because Andaman and Nicobar का length is even more than Gujarat. But because the question was only about the states, so here we talk about Gujarat. I hope that's clear. ठीक है. You can also know about the first 3 states or combining states and UTs in terms of increasing decreasing order. वो सब data भी आप fetch कर सकते हो if you want to. If you can remember that much, actually that is the key idea here. कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल हमें क्या जानना था, दैट विच आर्टिकल डील्स विद द कॉम्पोजिशन ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट. तो सबसे पहले तो पीपल शुड नो, आई इंटेंशनली डिड नॉट राइट राज्यसभा हियर, ठीक है, बिकॉज यू शुड नो दैट हाउस ऑफ पीपल एंड काउंसिल ऑफ स्टेट मीन्स व्हाट.
ऑल्दो ये हमने पिछले लेक्चर में भी करा था जब मैंने आपको पॉलिटी वाला क्वेश्चन दिया था, बट स्टिल यू शुड नो अबाउट इट. So basically they are asking you for which article deals with the composition of Rajya Sabha. It is article 80. हमने सिर्फ composition की बात की है, ठीक है, that the council of state shall consist of this. इसमें और भी है. This is just a smaller clip of that article. So just read about this article in detail. Now with this what you will prepare? You will also prepare the composition of विधान परिषद यानी legislative council, क्योंकि दोनों upper houses है ना, तो पूरा का पूरा अपर हाउस का सेंटर हो या स्टेट हो प्रिपेयर करके ख़त्म कर लेना. बिकॉज फॉर विधान परिषद देर आर मेनी थिंग्स विच आर डिफरेंट, कि मेंबर्स कैसे आते हैं, या फिर विच स्टेट्स हैव बाई कैमरल लेजिस्लेचर. सच अ बेसिक क्वेश्चन, बट दे कैन आस्क यू, एंड इन दिस कॉन्टेक्स्ट दे कैन इवन गिव यू लेट्स से सर्टेन ऑप्शंस एंड दे कैन आस्क यू ओनली 1, ओनली 2 वाला, ठीक है, कि दे विल गिव यू द नेम्स ऑफ सर्टेन स्टेट्स एंड दे विल आस्क यू कि हाउ मेनी ऑफ देम हैव बाई कैमरल लेजिस्लेचर. सो देखो कितना सिंपल क्वेश्चन हो जाएगा, बट स्टिल ट्रिकी हो जाएगा, बिकॉज मेनी ऑफ अस could have done these questions through elimination, you know, trying to recall that okay which state had bicameral, which had unicameral, तो हम eliminate कर सकते थे. But how many जब ये पूछते हैं the latest pattern, तो it becomes difficult. ठीक है, चलो next current affairs पे आते हैं. Which agency in India is the largest oil and gas producer? The answer of course is ONGC. ठीक है, ये तो गलत किसी का होना ही नहीं चाहिए था, लेकिन why did I ask that question? वो भी तो समझना होगा, तो ये इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेना, ठीक है, अबाउट इट लिटिल बिट. द लार्जेस्ट ऑयल कंपनी इन इंडिया एटसेट्रा एटसेट्रा, जहाँ पे अराउंड 70% ऑफ द कंट्री टोटल ऑयल प्रोडक्शन होता है, ठीक है, क्रूड ऑयल का. लेकिन अब ये देखो मैंने क्यों पूछा, ये एक बार अभी लेटेस्ट हाल फिलहाल में, ठीक है, ये प्रोबेबली इकोनॉमी टाइम्स से लिया गया न्यूज़ है, इफ़ आई एम एबल टू रिकॉल करेक्टली, बट ईदर वे यू कैन सर्च अबाउट इट, ठीक है. जस्ट सी द न्यूज़, आई जस्ट हेल्प यू सी इट. ये देखो न्यूज़ में क्या हो रहा है, इस बारे में ना ऑयल से रिलेटेड अभी बात की गई है न्यूज़ में, ठीक है. तो यहाँ पे कह रहे हैं द वर्ल्ड्स थर्ड लार्जेस्ट ऑयल इंपोर्टर एंड कंज्यूमर इज ऑन ट्रैक टू पोस्ट एन ऑयल डिमांड एटसेट्रा एटसेट्रा. इसको आप पढ़ लेना. बट बात क्या है, इन्होंने क्या बोला है, इंडिया विल ओवरटेक चाइना एज द बिगेस्ट ड्राइवर ऑफ ग्लोबल ऑयल डिमांड इन 2027. बाकी भी आप पढ़ लेना. ये इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी जो IEA एज एन ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने ये बात कही है और ये लेटेस्ट बात कही है. सो बेसिकली जहाँ पे भी इंडिया एंड चाइना में कंपैरिजन है, दैट बिकम्स इंपॉर्टेंट फॉर अस, ठीक है. अब इस कॉन्टेक्स्ट में व्हाट इज़ द एग्जैक्ट न्यूज़, व्हाट आर द डिटेल्स ऑफ द न्यूज़, यू आर सपोज टू स्टडी, थोड़ा उसको डिटेल में यू शुड डू दैट. And because they had asked the question related to this oil, etc., so I gave you that question about the largest producer. So you should also know who is the largest importer, who is the largest consumer, who is the largest producer, etc., etc. for oil. ठीक है, so all those facts you should know. चलो next question है मैप में विलिंगडन आइलैंड के लिए. I ask you, ये लोकेशन है इसका कोची में. अब कोची कहाँ है वो मैप में आपका काम है ढूंढने का. Now, why did I ask you? Again, it was in news, not very recently, but still, कुछ टाइम पहले, because of turning 100. अब देखो न्यूज़ देखो, ये है जून 2023. So again, probable thing for you. Turning 100, विलिंगडन आइलैंड yearns for rejuvenation, है ना. कोची का आइकॉनिक आइलैंड है और इम्पॉर्टेंट थिंग इज मैन मेड. तो बाद में आप इसका पूरा पढ़ लेना डिटेल क्या है एंड एक्चुअली डू मोर रिसर्च ऑन इट. ये अब इसी से रिलेटेड देखो एक लेटेस्ट न्यूज़ भी आई है जनवरी 2024 में. ऐसा नहीं है कि दिस न्यूज़ इज समथिंग दैट अदरवाइज पीपल वुड हैव गिवन अटेंशन टू, बिकॉज विद इन द सिटीज़ कोची में ये आया था, तो ऐसे तो कोई इस पर बात नहीं करता, बट बिकॉज 100 ईयर्स की बात हो रही थी, दैट इज़ वाई आई हैव गिवन इट हियर, ठीक है. सो द लेटेस्ट न्यूज़ सेज दैट द पोर्ट यूनियंस, क्योंकि यहाँ पे मैनमेड पोर्ट अभी हमने देखा, पोर्ट यूनियंस अर्ज द प्राइम मिनिस्टर टू हेल्प रिवाइव द एक्टिविटीज़ ऑन विलिंगडन आइलैंड. सो रीड अबाउट इट कि क्यों एक्टिविटीज़ यहाँ नहीं हुई हैं, क्या रीज़न है, क्या बेसिकली चल रहा है यहाँ, क्या इश्यूज़ रहे हैं, एंड वाई डू दे वांट रेजुविनेशन, ठीक है. बट द की थिंग हियर इज दिस, एंड एटलीस्ट यू शुड बी फेमिलियर. अब कोची कहाँ है, एज आई सेड, यू जस्ट फाइंड दैट आउट, आप उससे और भी बहुत ज़्यादा कुछ सीखोगे. चलो, सो हियर वी एंड आवर डिस्कशन ऑन द क्वेश्चंस फॉर टुडे ऑफ डे 17. आपको खुद ही दिख रहा होगा, दिखने में these questions are just 5 questions, but how many additional points you get to do from here, right? Now we'll see tomorrow at 9 AM हम day 18th
पे पहुंचेंगे। टर्न है इकोनॉमी की एज अ स्टैटिक क्वेश्चन एंड बाकी तो सेम ही रहेगा। सो बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट एंड सी यू गाइस, बाय बाय, टेक केयर।